Hallo Leute, guten Tag, ich bin da. Hallo alle, guten Tag. Guten Tag, ich heiße Khushbu Lalwani und ihr seht Deutsche Freundschaft. My name is Khushbu Lalwani and you all are watching Deutsche Freundschaft. In this video lesson for the Learn German for Beginners, we are going to learn the personal pronouns. And by that, we mean, like, for example, if I want to say, my name is Khushbu Lalwani, so I'll not say again and again that Khushbu eats pizza, Khushbu loves to have chocolates, Khushbu sleeps too much. So I would be rather saying, I sleep too much, I love pizza, I like to eat chocolates. So these are the personal pronouns, right, which I use in terms of my name. Same ways in English, जैसे हमारे पास होता है लड़के के लिए he लगा लो, लड़की के लिए she लगा लो, right? और एनिमल या किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए इट लगा लो. वही चीज़ आज जर्मन में पढ़ेंगे कि पर्सनल प्रोनाउंस जर्मन में किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. Fangen wir an. So now let's start the video with the personal pronouns, that is Personalpronomen. Personalpronomen, that are personal pronouns. So a pronoun is a word used in the place of noun to avoid the repetition of the same word in a sentence. Like in English also we can't say the cow has 4 legs, the cow gives milk, the cow eats grass, the cow is a herbivorous animal. So instead we use it, right, because it's an animal. So that is why we categorize them as it, और फिर हम उनके लिए उनका एक पर्टिकुलर प्रोनाउन यूज़ करते हैं. सेम वेज इन जर्मन ऑल्सो वी हैव द पर्सनल प्रोनाउंस बेस्ड ऑन द जेंडर और द नंबर ऑफ पीपल वी आर टॉकिंग टू, राइट. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. नाउ प्रोनाउंस ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन्स. सो द फर्स्ट पर्सन इज द वन हु इज टॉकिंग, लाइक इन माई केस इट इज़ मी. द सेकेंड पर्सन इज द वन विद whom आई एम टॉकिंग टू. In our case it is you all, right? So now अगर मैं एक बंदे को पढ़ा रही होती which was a single student, तो आप सिंगुलर होते, लेकिन आप क्योंकि अभी आप बहुत सारे हो जो इस वीडियो से पढ़ रहे हो, so that is why you all are plural, so more than one person involved, right? So you people are the ones that are the second person, and the third person is the one I am talking about. So for example, in our case currently, let's suppose I'm talking about the LGBTQIAP+ community, so I can say the third person is them, right? अगर वो सिंगुलर होता तो मैं पर्टिकुलरली एक LGBTQ कम्युनिटी के पर्सन से के बारे में बात कर रही होती, लेकिन क्योंकि अगर मैं पूरी कम्युनिटी के बारे में बात कर रही हूँ, सो अगेन इट्स प्लूरल बिकॉज इट्स देम बीइंग इन्वॉल्व्ड इन द कॉन्वर्सेशन. सो आई होप आई वॉज क्लियर दैट द फर्स्ट पर्सन इज द वन who is talking, second person is the one that person is talking to, and third person is the one about whom they are talking. So like for example, I am talking to my sister about my boyfriend, so I am the first person, my sister is the second person, and apparently my boyfriend is the third person. So let's move ahead. Now the first person, now again it's singular as well as plural, it can be singular as well as plural. So ish is I, right? Ish means I, and plural we have wir, that is we. So for example, I am learning German is मैं German पढ़ रही हूँ. Wir lernen Deutsch, that means we are learning German, that means हम German पढ़ रहे हैं. तो हम दोनों केसेस में ish हो या wir, दोनों फर्स्ट पर्सन्स हैं, राइट. सो ich komme aus Deutschland is I come from Germany. Wir kommen aus Deutschland is we come from Germany, right? Now let's move ahead with the second person. Second person, again it's informal and formal, as I told you in my previous lessons also, कि informal means होता है तू करके बात करना, और formal means होता है आप करके, जब आप किसी को respectfully बात करते हो. In German also we have the same thing, कि जब जो लोगों के साथ हमारा professional relationship नहीं है उनके साथ हम informal होते हैं, और जिनके साथ हमारा professional relationship है उनके साथ हम formal होते हैं. So for example, do is considered for singular you informally, and ear is considered for plural you all informally. So for example, मुझे बोलना है किसी को कि you are reading a newspaper, right, in an informal way, कि तू न्यूज़पेपर पढ़ रही है. So I would be saying du liest eine Zeitung. Du liest eine Zeitung. Make sure that the noun is always and always and always capital, whether it's coming in between the sentence, whether it's coming in the front of the sentence, or in any way, the noun is always capital, right? So, du liest eine Zeitung means you are reading a newspaper. Ihr
lest die Zeitung is you all are reading the newspaper. Again, Z is capital. So this is an informal way of talking to a second person, right? That you all are reading a newspaper. Now let's proceed to the formal second person. Now let's talk about the second person formally, यानी कि आप करके जब हम बात करते हैं. Now ये आप सिंगुलर के लिए भी यूज़ हो सकता है, प्लूरल के लिए भी यूज़ हो सकता है. आई होप आई एम क्लियर, बिकॉज हम बड़ों से भी बोलते हैं. अगर 10 लोग बड़े बैठे हैं तो हम सबसे आप करके बात करेंगे, और अगर एक बड़ा बैठा है तो भी हम आप करके ही बात करेंगे, राइट? सो सेम वे फॉर प्लूरल and singular we have the same subject that is called Z, S-I-E, right? S-I-E, but only thing that you have to make sure is that S is always capital in formal way. So जब भी formal होगा हमारा S हमेशा capital होगा, हमेशा. अगर ये sentence के बीच में भी नहीं होता, अगर ये sentence के बीच में भी होगा कभी, तो भी इस बीच capital ही use होगा, right? Now Sie lesen eine Zeitung. That means आप एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं. You are reading a newspaper. Sie lesen eine Zeitung. इससे क्या पता चलता है कि जो Zeitung है उसका आर्टिकल क्या है? D, क्योंकि eine लगा है, right? So Sie lesen eine Zeitung is you are reading a newspaper. And अगर हम you all की बात करें तो Sie lesen die Zeitung is you all are reading द न्यूज़पेपर. अब यहाँ पर आईना लगा है, यहाँ पर डी लगा है. क्यों? क्योंकि जब आप सारे एक ही न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, इसलिए उसको स्पेसिफिक करने के लिए, डेफिनेट करने के लिए हमने डी यूज़ किया है, राइट? सो यू आर रीडिंग अ न्यूज़पेपर एंड यू ऑल आर रीडिंग अ न्यूज़पेपर. ये दोनों सेंटेंसेस जो हैं हमारे, वो दोनों फॉर्मल ही हैं. दैट मीन्स हम प्रोफेशनली वे में उनसे बात कर रहे हैं. एक और कन्फ्यूजन सबके माइंड में होगी कि यहाँ पर आपने लेजन क्यों लगाया है. लास्ट स्लाइड में तो आपने लेस्ट या लीस्ट लगाया था. लास्ट स्लाइड में हमने यहाँ पर लगाया था डू लीस्ट eine Zeitung, राइट? तो यहाँ पर तो आपने ये लगाया है, लेकिन वहाँ पर लेजन कैसे हो गया, यहाँ पर लेजन कैसे हो गया? क्योंकि ये वर्ब की कॉन्जुगेशन है. जैसे कि आप आई के साथ वर्क लगाते हो और ही शीट के साथ वर्क्स लगाते हो, सेम चीज़ है, जिसको हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे कि हमें वर्ब को प्रोनाउंस और सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग कैसे कॉन्जुगेट करना है. तो आई होप आई वॉज क्लियर कि जी का मतलब क्या होता है. जी फॉर्मल, राइट? नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पर्सन. Now, in the third person again, you have der, die, das, which is called er, sie, es. As I told you, he, she, it. So English में भी यही होता है. He works, she works. तो he के लिए आपके पास अलग प्रोनाउन है, मतलब लड़के के लिए अलग प्रोनाउन है, लड़की के लिए आपके पास अलग प्रोनाउन है, और जो एनिमल्स या नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए आपके पास अलग प्रोनाउंस है. जर्मन में ये नहीं होता. एज आई टोल्ड यू इन माई लास्ट लेसन ऑल्सो, जर्मन में हम इवन थिंग्स को भी कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेयर, डी, दास, जिनकी वजह से उनको प्रोनाउंस मिलते हैं एयर, जी और एस. नाउ फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर टेबल के बारे में बात होती है, तो टेबल का आर्टिकल जो है वो डेयर है. अगर मुझे उसको इन अ सेंटेंस यूज़ करना है तो मैं उसके लिए प्रोनाउन क्या यूज़ करूँगी? एयर, क्योंकि उसका आर्टिकल क्या है? डेयर. तो अगर उसका आर्टिकल डेयर है तो आई विल बी यूजिंग एयर. अगर मैं किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करी होती जिसका आर्टिकल डी होता, फॉर एग्जाम्पल द वॉच, डी उअर, तो मैं उसको प्रोनाउन उसके लिए क्या यूज़ करूँगी? जी. दैट इज SIE, which in which S is small. So it's not capital like the formal Z, it's small, right? और अगर मैं किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करी जिसका आर्टिकल दास है, तब हम लोग क्या करेंगे? अगर उसका आर्टिकल दास है तो मैं उसके लिए क्या प्रोनाउन यूज़ करूँगी? एस. अब आप सोचोगे कि टेबल को हम ही करके बोलेंगे सेंटेंस में, आप बोलोगे उसको इट करके ही, लेकिन लगाओगे एयर, जी या एस डिपेंडिंग ऑन द जेंडर. Now here for example I have taken er arbeitet als ein Lehrer. He works as a teacher. Er arbeitet als is as, ein Lehrer is a teacher. So he works as a teacher. But sie arbeiten als die Lehrer. That means they work as teachers. They work as the teachers. तो टीचर का प्लूरल टीचर्स में हमने डी लगा दिया, क्योंकि प्लूरल के लिए हम डी लगाते हैं, पहली चीज़. दूसरी, अब आप सोचोगे यहाँ पर फिर जी आ गया, ये वाला जी भी है. तो इन जी पे अगर आप चाहते हो कि मैं एक अलग वीडियो बनाऊँ, तो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जीज इन जर्मन. एंड ऑल्सो मेरी नेक्स्ट 2 वीडियोज़ होंगे, आई विल ट्राई कि मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊँ, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाए कि जो कौन सा जी है वो किसके साथ यूज़ होगा, राइट? सो यहाँ पर जो चीज़ आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि ये वाला जो जी है ये दे को रेफर कर रहा है. अगेन ये भी जी जो होगा वो स्मॉल होगा,
राइट, जैसे हमारा ये वाला जी है जो शी को रेफर कर रहा है, लेकिन फ़र्क कहाँ है, कॉन्जुकेशन में. कॉन्जुकेशन इज कि वर्ब के साथ, सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगेगा. इंग्लिश में अगर आपको याद हो, शी वर्क्स, लेकिन दे वर्क, राइट. सेम चीज़ है, एयर आर बाई टेट. अगर यहाँ जी होता, अगर होता शी वर्क्स एज अ टीचर, तो भी हम लगाते हैं जी आर बाई टेट. जो हमारी वर्ब फॉर्म है वो हमें डिफरेंस करने में हेल्प कर रही है, जिसको कि जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वर्ब की कॉन्जुकेशन समझाऊंगी वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट एग्जाम्पल्स. नाउ फॉर एग्जाम्पल, इश हाइस खुशबू. इश हाइस खुशबू, दैट मीन्स आई एम कॉल्ड एज खुशबू. मुझे खुशबू के नाम से बुलाया जाता है. बाइस्पीलर इज एग्जाम्पल्स. तो आपने यहाँ पे चीज़ देखी, इश, दैट मीन्स आई एम द फर्स्ट पर्सन. नाउ सेकेंड हमने एग्जाम्पल लिया, वारिया इस्ट आइन फ्राउ. वारिया इस्ट आइन फ्राउ जी वोंट इन इंडियन. तो मुझे बार बार वारिया नहीं बोलना पड़ा, वारिया वोंट इन इंडियन, कि वारिया इंडिया में रहती है. उसके बदले मैंने क्या यूज़ करा, शी. सो वारिया को ना बोलने के बदले मैंने उसको क्या बोला, शी. शी लिव्स इन इंडिया बिकॉज वारिया इज अ विमेन, दैट इज़ वाई मैंने उसके लिए आर्टिकल लिया शी. आई होप आई वॉज क्लियर हेयर. नाउ let's move to the third example. Sie heißen Herr und Frau Lalwani. Now you must be thinking कि कौन से वाला जी है, हमें कैसे पता चलेगा. पहला चीज़ तो ये कि सेंटेंस क्या है, हेयर und फ्राउ, यानी कि मिस्टर एंड मिसेस. तो ये कोई एक बंदा तो हो नहीं सकता ऑब्वियसली. क्या बचा हमारे पास लास्ट, दे, राइट. सो जी हाइसन हेयर und फ्राउ लालवानी, दे आर कॉल्ड एज मिस्टर एंड मिसेस लालवानी. हेयर को हम बोलते हैं मिस्टर और फ्राउ को हम बोलते हैं Mrs. So they are called as Mr. and Mrs. Lalwani. Now let's move to the other examples. Now, Karan ist ein Junge, ist 12 Jahre alt. Karan ist ein Junge, ist 12 Jahre alt. Karan is a boy, he's 12 years old. Now here Karan एक लड़का है, right? Karan ist ein Junge, that means he is a boy. यहाँ पे is he, ये किसको denote कर रहा है, Karan को, right? तो करण एक लड़का है और ही इज़ 12 years old, वो 12 साल का है. नाउ फिफ्थ एग्जाम्पल, das ist ein Buch, ist sehr langweilig. Now this is a book, it is very boring. Like for example, book का आर्टिकल होता है das Buch. मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, ein Buch that means das Buch. अब बुक के लिए, क्योंकि बुक का आर्टिकल das है, तो दास के लिए हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, हम एस प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं. तो das ist ein Buch, es ist sehr langweilig, it is very boring. तो बुक के लिए हमने आर्टिकल यूज़ किया है यहाँ पर it. Now wir lernen Deutsch, we are learning German. ऑल्सो जर्मन में कॉन्टीन्यूस टेंस एग्जिस्ट नहीं करता, तो कुछ सोचना मत कि आर के लिए अलग लगेगा, लर्निंग के लिए अलग लगेगा, नहीं. देर इज़ नो कॉन्टीन्यूस फॉर्म इन जर्मन, इट डज नॉट एग्जिस्ट. सो वी आर लर्निंग जर्मन, वी आर लर्नन डॉइच, दैट मीन्स हम जर्मन सीख रहे हैं. सो वी आर लर्निंग जर्मन. नाउ important points that you have to remember. One is that the noun will always be capital in German, whether it is in the starting, middle or the end of the sentence. तो अगर noun starting में लग रहा है, middle में लग रहा है, end में लग रहा है, whatever is the case, you have to make it capital. Like मैंने जो नीचे example दिया आपने उसमें notice किया होगा, वारिया का V जो है that is capital. Mädchen का मतलब होता है लड़की, उसका M capital है, वारिया का V capital है, right? So that is why the noun will always be capital. Second, determine the noun. There should always be a determiner before every noun depending on the sentence and the noun except for the names. अभी इतनी बड़ी लाइन का मतलब ये था कि आपको आर्टिकल्स लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी नाउन के आगे. फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस आई ऑल्सो हैव रिटन शी इज़ अ गर्ल, राइट? तो शी इज़ गर्ल नहीं, शी इज़ अ गर्ल. इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल ये और चीज़ क्लियर हो जाएगी, जैसे कि दिस इज़ द सन, राइट? आप बोलते नहीं हो दिस इज़ अ सन, यू से दिस इज़ द सन, क्योंकि वो सन स्पेसिफिक है, राइट? सो दैट इज़ वाई यू हैव टू डिटरमाइन. डिटरमाइन मीन्स कि कौन सा आर्टिकल है. डिटर्मिनर्स लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं. सो दैट इज डी जोनर, तो जोनर का आर्टिकल डी है. आप इसको स्पेसिफिक करोगे तभी मैंने द को
हाईलाइट किया. Now the third point that you have to remember is the verb is always used at the second position in the conjugated form. That means according to the pronoun. For example, जब भी आपने किसी सेंटेंस में देखा होगा हमारी verb जो है वो हमेशा सेकंड प्लेस पे यूज़ हुई है. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया है, इश बिकॉम अ गुटर नोटन, आई रिसीव गुड मार्क्स, यहाँ रिसीव गुड पॉइंट्स, गुड रिमार्क्स, राइट. तो वर्ब जो है वो हमेशा सेकंड प्लेस पे रहेगी हमारी. और नीचे आपको एग्जाम्पल दिख रहा है, वी आर बिकॉमन गुटर नोटन, दैट मीन्स वी रिसीव गुड पॉइंट्स या गुड रिमार्क्स. दोनों में फ़र्क है ना, तो ये ई और इसका फ़र्क है. अब ये फ़र्क क्यों है? क्योंकि वर्ब के हिसाब से कॉन्जुगेशन है. जैसे कि आप लगाते हो आई के साथ एम और ही शी इट के साथ इज़, वैसे ही सेम चीज़ है जो जर्मन के वर्ब्स में है, जिसको हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे. तो क्या चीज़ याद रखनी है कि जो वर्ब है वो हमेशा सेकेंड प्लेस पर रहेगा. मैं आपको और एग्जाम्पल्स जो हैं वो भी शेयर कर देती हूँ. जैसे कि आपने यहाँ देखा होगा जी हाइस्ट वारिया, तो जो फर्स्ट प्लेस था वो हमारा प्रोनाउन था, सब्जेक्ट जिसे कह सकते हैं. सेकंड प्लेस हमारा लिया था वर्ब ने. यहाँ पर भी अगर आप नोटिस करो तो सेकंड प्लेस लिया था हमारा वर्ब ने. आगे भी अगर आप किसी सेंटेंस में नोटिस करना चाहते हो तो वो भी मैं आपको शेयर कर देती हूँ. तो सी सेकंड प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे. सो द वर्ब विल ऑलवेज बी एट दी second place. And herzlichen Dank. Thank you so much everyone. So this was the end of our video. I really hope that you liked this video. If you like this video, please give it a thumbs up and subscribe to my channel Deutsche Freundschaft. And in the next video, we'll be telling you about the verb conjugations. Right? So don't miss that one also. And if you don't want to miss that one, please press that bell icon so that you don't miss any video. So for today, auf Wiedersehen, auf Wiederhören und ciao.